Good evening, students. I know, as usual, you all are very well. Students, if you remember, in on the video of Monday, yesterday, we have discussed the summary of the chapter Indigo. And today, students, we are going to start the pairwise narration with explanation along with the reading of the chapter from the book Indigo. So students, all of you, open your books and sit with your books and with your pencil also, because the chapter is not as much interesting as the last two chapters which we have completed. Should Wizard Hit Mummy and another one on the face of it. It was not as much interesting because it's not having any up and down of whatever the story over there, but it is based on the real life actually. It's about Indigo. It's about the reality, the facts of our own country. So students, it's all about that, and that is why it's not very much difficult or not very much easy and not very much interesting too, but from the point of view of board exam, the chapter is very important, especially the long answers are supposed to ask from this or the quotation from in between, from anywhere it can come up. So for that concern, you all are requested कि आप बहुत sincerely बैठे अपने pencil के साथ और book के साथ. Page number first, we are going to start with the Indigo here. So let's start today's explanation. The chapter start with the book Flamingo, chapter 5, and that is Indigo. First of all, we will start with about the author. I'm reading, you just put fingers on your lines and pay attention. Louis Fisher. And who is the Louis Fisher? The writer of this present chapter, who has written this chapter. So Louis Fisher was born in Philadelphia. Fingers on lines, students, please. He served as a volunteer in the British Army between 1980 and 1920. He served as a volunteer, means he participated in British Army also between 1980 to 1920, 2 years only. Fisher made a career as a journalist. Then he became a journalist and wrote for the New York Times, the Saturday Review, and for European and Asian publications. These were the different books or magazines for which the fellow was writing. Newspaper names for which the fellow was writing. He was also a member of the faculty at Princeton University. Apart from that, he was a member of Princeton University faculty, staff member. The following is an excerpt. Excerpt means the part of the chapter from his book. उसने जो book लिखी है, The Life of महात्मा गांधी. एक बहुत ज़्यादा फेमस बुक है. गांधी जी के ऊपर वैसे तो बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, लेकिन लुइस फिशर की द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी द बेस्ट नोन है. एंड इसके जो चैप्टर्स हैं या इसमें जो इंसिडेंट्स हैं वो मोस्टली कोट किए जाते हैं बहुत सारे चैप्टर्स में. तो द बुक हैज़ बीन रिव्यूड एज वन ऑफ बेस्ट बुक्स एवर रिटन ऑन गांधी, और बेस्ट बुक एवर रिटन. अब बहुत सारी बुक्स लिखी है लेकिन इसको बहुत बेस्ट बुक माना जाता है गांधी जी के ऊपर बाय टाइम्स एजुकेशन सप्लीमेंट. दैट वाज द क्राइटेरिया विच दे हैव डिसाइडेड दैट दिस बुक इज द बेस्ट बुक ऑन गांधी जी. सो स्टूडेंट, दैट वाज द ये एक इंट्रो था लुइस फिशर का, जो कि एज अ जर्नलिस्ट और एज एन इंटरव्यू गांधी जी से मिलने आए थे सेवा आश्रम में. और जैसे मैंने आपको समरी में भी बताया था कि ये चैप्टर थोड़ा कॉन्वर्सेशन में है. गांधी जी लुइस फिशर को बता रहे हैं कि उन्होंने कैसे इंडिगो वाला जो एपिसोड था, ये जो चंपारण वाला एपिसोड था, उसको कैसे जीता. तो ये कॉन्वर्सेशन है और अब हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं. आई होप सो आपके माइंड सेट रेडी होंगे इस चैप्टर को पढ़ने के लिए. चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट, आई एम टेलिंग यू वेरी सीरियसली, सो बी सिंसियर फ्रॉम द डे वन. Okay, let's start. When I first visited Gandhi, students, who is I here? I is Louis Fisher. Please keep on noting down with your pencil, because जब आप खुद पढ़ोगे बोर्ड एग्जाम्स के लिए, हम फिर रिपीट कर दूं, ये चैप्टर्स हम क्लास में रिपीट नहीं करने जा रहे हैं दोबारा. आप इस उम्मीद में बिल्कुल मत रहिएगा कि हम ये चैप्टर दोबारा पढ़ रहे हैं. नो वे, इतना टाइम होगा नहीं. गॉड नोज कब खुलते हैं स्कूल, हमें नहीं पता. तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैप्टर को सिंसियरली, जैसा आपसे ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है, आप उसे पढ़ लीजिए, बार बार सुन लीजिए, नो प्रॉब्लम. क्वेरीज है तो पूछ लीजिए, देयर इज नो इशू. लेकिन बट एक नीड है आपसे कि आप थोड़ा सिंसियरली चैप्टर्स को फोकस करें, पढ़ें, समझें. दैट इज द नीड ओवर देयर. क्लियर स्टूडेंट्स? सो आई एम स्टार्टिंग अगेन. व्हेन आई फर्स्ट विजिटेड. सो स्टूडेंट्स, आई एम रिपीटिंग अगेन हियर. द आई इज लुइस फिशर. लुइस फिशर इज टेलिंग अस कि वो पहली बार कब विजिटेड गया,
गांधी जी से मिलने के लिए। तो वो गया था 1942 में। दैट वाज द डेट एट हिज आश्रम। हु इज हिज हियर? गांधी जी के आश्रम में इन सेवाग्राम इन सेंट्रल इंडिया। सेवाग्राम आश्रम में सेंट्रल इंडिया में 1942 में गांधी जी के आश्रम में लुईस फिशर उनसे जब पहली बार मिलने गया होगा। कई बार मिलने गया होगा, बहुत सारी बातें हुई होगी, क्योंकि ये जो चैप्टर है आपका वो तो उस बुक में, ये जो आपकी बुक है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, उसमें तो पूरी लाइफ के बारे में डिटेल होगा महात्मा गांधी का। और ये जो चैप्टर है आपका, ये सिर्फ एक ही पार्ट है या एक छोटा सा चैप्टर है उनकी लाइफ का, जो उन्होंने अपनी एंटायर लाइफ में किया है। तो बी सिंसियर अबाउट इट। क्लियर? सो ही सेड, और फिर वो कहता है हु इज ही हियर? गांधी जी। गांधी जी कहते हैं आई विल टेल यू हाउ इट हैपेंड। मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये कैसे हुआ। स्टूडेंट हियर इट स्टैंड्स फॉर द चंपारण एपिसोड, या इंडिगो वाला जो चैप्टर था वो कैसे सॉल्व हुआ, या इंडिगो वाली जो प्रॉब्लम थी ब्रिटिशर्स के साथ थ्रू स्लेवरी, वो कैसे सॉर्ट आउट हुई। तो इट यहाँ स्टैंड करता है इंडिगो की प्रॉब्लम को, जिससे कि फार्मर्स जो है वो सफर कर रहे थे उस टाइम के, जिसके लिए राजकुमार शुक्ला गांधी जी को अपने साथ चंपारण ले जाने आया था। रिमेंबर दिस, इट हियर स्टैंड्स फॉर द चंपारण एपिसोड। सो आई विल टेल यू, यू हियर स्टैंड फॉर, यहाँ पे एक डायरेक्ट नरेशन है, डायरेक्ट डायलॉग कोट किया है लुईस फिशर ने। गांधी जी ने जो उससे डायरेक्टली कहा था कि मे बी उसने पूछा होगा कि सर कुछ चंपारण एपिसोड के बारे में बताइए, तो देन गांधी जी ने उससे कहा है कि आई विल टेल यू, कि मैं तुम्हें बताता हूँ हाउ इट हैपेंड, कि ये कैसे हुआ। दैट आई डिसाइडेड टू अर्ज, कि मैंने कैसे डिसाइड किया। अर्ज मीन्स, वैसे तो अर्जिंग होती है किसी को इन्वोक करना, उकसाना। द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश, की एक तरह से रास्ते खोलना, कि ब्रिटिशर्स बाहर कैसे निकले, इसके लिए मैंने क्या मेहनत की, क्या एफर्ट्स किए। इट वॉज इन 1917, और शुरुआत कहाँ से हुई? 1917 से, और 1942 में विजिट किया था। ये फर्स्ट पैराग्राफ ही आपको सारा डिटेल दे रहा है कि ये चैप्टर सारा फ्लैशबैक में चल रहा है। एक स्टोरी है, स्टोरी मतलब ओरिजिनल स्टोरी है, गांधी जी के पार्ट का एक छोटा सा चैप्टर है, जिसको कि लुईस फिशर ने अपने वर्ड्स में कन्वर्ट करके लिखा है, जो इस चैप्टर के थ्रू आपके पास आया है। क्लियर स्टूडेंट? लेट्स टेक द अनदर पैराग्राफ, सेकेंड पैरा। He had gone to the December 1916 annual convention. Again, who is he here? गांधी जी। अब लुईस फिशर लिख रहा है कि गांधी जी कहाँ गए थे? दिसंबर 96 का जो एनुअल कन्वेंशन था, कन्वेंशन असेंबली कह लीजिए, पार्टी कह लीजिए, मीटिंग कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, किसकी थी? ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की जो एनुअल मीटिंग थी उसमें गए थे 1916 में लखनऊ में। देर वर 2301 डेलीगेट्स। डेलीगेट जो मेंबर्स वहाँ पे मीटिंग अटेंड करने आए थे, उनकी जो नंबर ऑफ डेलीगेट्स थे वो कम से कम इतने थे, 2301 डेलीगेट्स गए थे। एंड मेनी विजिटर्स, और बहुत सारे विजिटर्स थे, मतलब अपार्ट फ्रॉम द डेलीगेट्स बहुत सारे विजिटर्स जो वैसे भी मिलने आए थे गांधी जी से, वो लोग थे। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स, प्रोसीडिंग मतलब जब ये मीटिंग चल रही थी, प्रोसीडिंग मतलब आगे बढ़ना, जब चल रही थी ये मीटिंग, गांधी रिकाउंटेड, तो गांधी जी को याद आता है कि एक पीजेंट और फार्मर, पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर दूँ स्टूडेंट्स, पीजेंट होता है आपका जो छोटा किसान होता है, जिसके पास खेती की बहुत थोड़ी सी ज़मीन होती है, होता तो किसान है लेकिन उसके पास ज़मीन बहुत कम होती है। और जो फार्मर होता है उसके पास बहुत बड़े बड़े पीस ऑफ लैंड्स होते हैं। तो ये डिफरेंस होता है पीजेंट और फार्मर में। करते दोनों फार्मिंग है लेकिन स्लाइट सा डिफरेंस है। देन आफ्टरवर्ड्स गांधी रिकाउंटेड, अ पीजेंट केम अप टू मी, गांधी जी को याद आता है कि एक पीजेंट मेरे पास आया था, छोटा सा किसान मेरे पास आया था, लुकिंग लाइक एनी अदर पीजेंट इन इंडिया, और वो भी और जैसे और पीजेंट लगते हैं हमारे देश के, उन्हीं की तरह वो भी लग रहा था, मतलब थोड़ा गरीबी हालत में, थोड़ा बेचारा सा, लाचार सा, वैसे ही नजर आ रहा था। एंड सेड, और उसने मुझसे एनी अदर पीजेंट इन इंडिया, पुअर, कैसे थे हमारे देश के जो और किसान थे उस टाइम के, वो कैसे थे? तो गरीब थे, पुअर थे, और इमैसिएटेड, इमैसिएट मतलब पतले दुबले, जैसे लैक ऑफ ऑल द थिंग्स, लाइक कमी होना हर चीज़ की, खाने की और हर चीज़ से लेकर, तो इसी तरह से पतले दुबले से, कमज़ोर से और गरीब सा, ऐसे ही राजकुमार शुक्ला भी था। एंड सेड, और वो मुझसे आके कहता है आई एम राजकुमार शुक्ला, मैं राजकुमार शुक्ला हूँ, एंड आई एम फ्रॉम चंपारण, और मैं कहाँ से हूँ? चंपारण से। उसको पूरा डिटेल देते हैं। कौन बात कर रहा है? राजकुमार शुक्ला बात कर रहा है। किससे बात कर रहा है? गांधी जी से बात कर रहा है। एक डेलीगेशन हुआ था, एक कन्वेंशन हुआ था, एनुअल मीटिंग हुई थी नेशनल कांग्रेस की, वहाँ पे
वहाँ पे याद आता है गांधी जी को कि पहली बार मैंने राजकुमार शुक्ला को, उस पीजेंट को वहाँ देखा था, वो ऐसे ऐसे मेरे पास आया था इतने इतने इवेंट में और उसने मुझसे इस तरह से अपने आप को इंट्रोड्यूस किया। एंड आई वॉन्ट यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट, और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे डिस्ट्रिक्ट कहाँ, चंपारण चलें। गांधी हैड नेवर हर्ड ऑफ दैट प्लेस, और जहाँ तक गांधी जी की बात है उन्होंने शायद पहली बार उसके मुंह से उस जगह का नाम सुना था। इट वॉज इन द फुट हिल्स ऑफ द टॉवरिंग हिमालयज, और अब कहाँ था, फुट हिल्स मतलब नीचे की तरफ, हिल्स नीचे की तरफ, हिमालय के जो हिल्स में थे, फुट हिल्स नीचे की तरफ, वहाँ पे एक प्लेस है, टॉवरिंग मतलब लंबे चौड़े हिमालयाज के, नियर द किंगडम ऑफ नेपाल, नेपाल के जस्ट पास, नेपाल के पास से सटा हुआ, नेपाल देश से सटा हुआ। तो ये एक लोकेशन है जो ऑलमोस्ट बताई होगी, शायद गांधी जी ने पूछा होगा कहाँ है चंपारण एंड ऑल दैट। तो ये इस तरह से जो है उसने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, और वो डे वन से उसने रिक्वेस्ट की गांधी जी से कि आप मेरे साथ प्लीज़ चंपारण चलिए और हमारी प्रॉब्लम इस तरह से आप सॉर्ट आउट कीजिए। सो स्टूडेंट, द टाइम इज़ लिमिटेड हेयर। कल के वीडियो में हम आगे के जो भी प्रोसीडिंग्स है वो कंटिन्यू करेंगे। फॉर टुडे दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे सेफ, स्टे होम, और चिल्ड्रन इस चैप्टर को लाइटली बिल्कुल मत लेना, इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग आंसर्स आते हैं। सो स्टे सेफ, स्टे होम, बाय बाय।